गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। ठीक है निंदा, बहुत बहुत देर कर दिए तुम आज। नो गुड नो मॉर्निंग सर। सर ज्वाइन ठीक है, कोई बात नहीं। अभी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं उसको। सेट अप इक्वेशन एंड सॉल्व देम टू फाइंड द अननोन नंबर इन द फ्लोइंग केसेस। सेट अप द equation. Question number one, set up the equation. Set up equation uh, and solve them to find the number and solve them to find the unknown number from the given cases, that is the numbers in the following cases. In the following cases, we have to form the equations and then we have to solve them. Now, question one, that is add 4 to 8 times a number, you get 60. Add 4, add 4 to 8 times, to 8 times a number, you get 60. You get 60. So here we will obtain 60. So that will be right side. Add 4 to 8 time a number. Let the number be x. हम लिख सकते हैं यहाँ पर let the number be x. Let the number be x. So 8 time of x, 8 times x, 4 is added, we get 60. That is the equation. So we have to solve it. It will be 8 times 4 added to 8 times a number, we get 60. So 8x by transposing the 4 to right hand side, 60 minus 4, we get 8x 8x equal to 56, or we will get x equal to 56 by 8, or that will be answer 7. So easy, आसान है. यस सर। Yes, sir. Now another one fifth of a number minus 4 give 3. One fifth of a number. Second one is I am going to come here. Question is one fifth of a number. One fifth of a number. One fifth of a number. One fifth of a number minus 4. 4 give 3. Gives 3. One fifth of a number. Let the number be x. Again, let the number be x. Then one fifth of the x, that is 1 by 5. So one fifth of x. One fifth of a x minus 4 gives 3. Or you have to solve it. आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ट्रांसपोज करेंगे इसको, और 1 by 5x gives, that is 3 plus 4, or x by 5 equal to 7, or x equal to x will here will multiply it,
That is the 7 multiplied by 5. You get 35. So too easy. बन जाएगा? Yes, sir. आसान है? Yes, sir. कितना आसान है? Sir. ना आगे इसमें कितना प्रॉब्लम है तो देख लेता हूँ थोड़ा सा जस्ट मिनट आई एम in the total number of the questions in the exercise. एक्सरसाइज में बहुत क्वेश्चन तो हैं 1 2 और 3 मेन है उसके बाद तो आपको सॉल्व करना है ना अगेन सी को सॉल्व करते हैं हम सी को देखते हैं कैसा क्वेश्चन है सी 1 3 ऑलराइट now C1 that third one that is number using alphabet I don't know it is C the button is C. Now question that if one if I take 3/4 of a number if I take 3/4 of a number if I take 3/4 of a number 3/4 of a number if I take 3/4 of a number of a number and add 3 to it and add 3 to it I get 21 I get 21 now if I take 3/4 of a number let the number be again 3/4 I have written here 3/4 3/4 3/4 of a number that is 3/4 of a number it is given 3/4 of a number 3/4 of a number so let the number be again let the number be x now 3/4 of a number 3/4 of x if I take 3/4 of a number and add 3 then when we add 3 so we get 21 or we have to transpose the 3 to right hand side 3/4 x equal to 21 minus 3 or 3x by 4 we will get that is 18 after subtracting from 21 we will get 18 now 4 will be multiplied here and 3 will be divided or you will get x equal to 3 multiplied by 4 divided by 3 so 3 6 18 or 6 4 24 so x equal to 24 in this way you have solved the problem any problem No, sir. दिखाई दे रहा है Yes, sir. Yes, sir. ऑलराइट कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा No, sir. No, sir. हाँ ठीक है No, No, तो sir. ठीक है अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा नेक्स्ट प्रॉब्लम और जो है No, उसको sir. सॉल्व कर मेरे को नहीं लीजिएगा समझ आया. क्या नाम है आपका अमृता कुमारी रश्मि प्रिया. रश्मि प्रिया तुमको समझ में नहीं आया कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ में आया ये बोला नहीं सर मेरे को दोनों में से कोई समझ में नहीं आया. अच्छा ठीक है अंग्रेजी बोलते हैं इसलिए इफ ए नंबर इफ आई टेक ए नंबर 43 को समझो ठीक है
फर्स्ट ऑफ ऑल इसी क्लास कर लीजिए इस क्वेश्चन के। अभी तो जो क्वेश्चन 1 और 2 था, ए और था, वो तो सॉल्व नहीं किए, वो मिटा दिए, रब कर दिए हैं। तो अभी बोर्ड पे है, उसको देखिए, उसके बाद हम फिर से 1 का लिखेंगे, 1 ए और बी का लिख के देंगे, ठीक ना। तो पहले, इफ आई टेक 3/4 ऑफ ए नंबर, कौन सा नंबर? 3/4 ऑफ ए नंबर, तो नंबर हम मान लेते हैं एक्स है, तो उसका 3/4, तो 3/4 ऑफ एक्स, और उसको बोला है कि ऐड 3, तो 3 ऐड करेंगे, तो 3 ऐड किए तो वी गेट 21। हम लोग क्या पाए? वो 21 पाए। ऑलराइट, Yes, sir. यस सर। किया। Yes, यस sir. सर। यस सर। तो इक्वेशन बनाने के लिए पहले हम मानते हैं कुछ। तो जो नंबर दिया हुआ है 3/4 ऑफ नंबर, 1/3 ऑफ ए नंबर, है ना, 8 मल्टीप्लाई बाय ए नंबर, तो वो नंबर क्या है? नंबर इज दैट वी हैव टू दैट इज वी हैव टू we don't know the number, that number, so we will take as x. So let the number be x. हम उस नंबर को x माने, then 3/4 of a number plus 3 we get 21, or 3/4 by x, by transposing to right hand side, that is 3 will be subtracted from 21, so we get सर 3/4। हाँ, सर ये 21 कहाँ से आया? यहाँ जो दिया हुआ है we get 21, हम लोग जो पाते हैं 21 क्वेश्चन में दिया हुआ है। If I take 3/4 of a number and add 3 to it, I get 21. मुझे पाएंगे 21, so result is given here 21. So 3/4 x plus 3 equal to 21. So 3/4 of x equal to 21, ये तो ट्रांसपोज कर दिए इधर राइट हैंड साइड में, तो we get 18. So 3x by 4 equal to 18. So 4 will multiplied and 3 will be divided. So after dividing 18 by 3, we get 6, or 6 multiplied by 4, we get 24. समझ में आ रहा? यस सर। ठीक है। Yes, sir. Now, अब सर रश्मि प्रिया आप समझ गई होगी, इसका पहला क्वेश्चन ये भी बनाना पड़ेगा। हाँ सर समझ गए। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग यहाँ पे 2 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में जो बना हुआ है क्वेश्चन है, सॉरी, क्वेश्चन जो दिया हुआ है 2 का, उसको हम लोग देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है उसमें। ठीक है। नाउ द टीचर टेल द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क ऑब्टेन बाय ए स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क प्लस 7। टीचर बोला कि दैट क्लास में कि द हाईएस्ट मार्क ऑब्टेन बाय ए स्टूडेंट, हाईएस्ट मार्क जो ऑब्टेन किया गया है एक स्टूडेंट के द्वारा, वो जो है वो क्या है, ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स ऑफ प्लस 7 है। द हाईएस्ट स्कोर इज 87, व्हाट इज द लोएस्ट स्कोर? तो हमको लोएस्ट स्कोर देखना है, तो ट्वाइस क्या दिया हुआ है, लोएस्ट स्कोर प्लस 7 है। ठीक है। हाईएस्ट मार्क, हम लोग को जो हाईएस्ट मार्क दिया हुआ है उसमें देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो हाईएस्ट मार्क क्वेश्चन नंबर 2, इसको हम क्वेश्चन को नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन लिख के बहुत लंबा हो जाता है। क्वेश्चन बुक में दिया हुआ उसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर। हाईएस्ट मार्क क्वेश्चन नंबर 2 ए में दिया हुआ है। एक क्वेश्चन है, टीचर्स टेल टू द क्लास दैट इज द हाईएस्ट मार्क ऑब्टेन बाय स्टूडेंट। हाईएस्ट मार्क और हाईएस्ट मार्क equal to twice the lowest mark, twice the lowest mark plus 7. They are given lowest marks plus 7.
lowest marks प्लस 7। टीचर बोलता है कि हाईएस्ट मार्क्स जो है वो लोएस्ट ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स प्लस 7 है। ना हाईएस्ट मार्क्स जो है क्या है आपका क्लास में, हाईएस्ट स्कोर इज 87, व्हाट इज द लोएस्ट स्कोर? सो व्हाट इज द लोएस्ट स्कोर? लेट द लोएस्ट स्कोर बी एक्स। यहां पर हम मान सकते हैं लेट द लोएस्ट स्कोर for the x, then highest score is given 87 bx, so 2x plus 7 equal to highest marks that is 87। सर धुंधला दिख रहा है। x equal to 2x equal to 87 यस सर, धुंधला दिख रहा है। minus 7 धुंधला दिख रहा है। और धुंधला दिख रहा है। ठीक है, धुंधला दिख रहा है तो अभी बादल आ गया है, वो साफ हो जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है। साफ होगा। अब साफ हुआ। तो 2x equal to 80 or x equal to, that is after solving x equal to will get 40। समझ में आ रहा? समझ में आया? यस सर। यस समझ सर। में आ गया ना? यस सर। तो लोएस्ट मार्क्स कितना हो गया? x। हम लोग लोएस्ट लेट द लोएस्ट मार्क्स भी x हम माने हैं, तो लोएस्ट मार्क्स कितना हो गया? लोएस्ट मार्क्स स्कोर या मार्क्स इक्वल टू 40। समझ में आया? यस सर। दिखाई दे रहा? यस सर। ऑलराइट 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 ऑलराइट। आप लोग इस पे ध्यान दीजिए, बोलिए नहीं। आप लोग बोलते हैं तो फिर और सब बच्चे को डिस्टर्ब होता है। समझ में आ गया? ऑलराइट, ठीक है। नाउ हम लोग करेंगे सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसी का 2 का 2 क्वेश्चन नंबर 2 में जो बी दिया हुआ है उसमें सॉल्व करते हैं। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द बेस एंगल आर इक्वल, द वर्टिस एंगल इज 40 डिग्री, what are the base angle of the triangle? Remember the sum of the three angle of triangle are 180 degree। so हमको दिया हुआ है क्वेश्चन बी में, इसका 2 का बी में हम लोग सॉल्व करते हैं। Here question number 2b, a triangle is made and base angles are given। here ये मान लीजिए एक ट्रायंगल है ए बी एंड सी है और बेस एंगल है 2, so base angles are equal, base angles are equal। now one angle, that is the vertex, that is the top angle of the triangle, that is given, the vertex angle is 40 degree, so vertex angle is 40 degree, so angle A equal to 40 degree। now we have to solve the problem, so let the base angle be x, let the base one angle of base, let one angle of base be x degree। so as we know
that sum of all angles of triangle equal to 180 degree. ये जानते हैं हम. So angle A plus angle B plus angle C equal to 180 degree. Or we will put the value 40 degree plus x and plus x as both the base angles are equal. These two are equal. So we will get 180 degree. Or by transposing 40 degree to right hand side, 2x equal to 180 degree minus 40 degree, or 2x equal to 140 degree, or x equal to, that is the, we will option x equal to, that is 70 degree. So base angle are 70 degree. So base angles are equal. So we can write down base angle equal to angles are 70 degree. 70 डिग्री होगा. समझ गए? सर हाँ. सर एक बार क्वेश्चन समझा दीजिए, जो आप अभी बताए ना उसका क्वेश्चन एक बार समझा दीजिए. क्वेश्चन दिया हुआ है कि इन एन आइसोलेस ट्रायंगल किसे कहते हैं? जिसका दो साइड क्या होता है? बराबर होता है. आइसोलेस ट्रायंगल है, दो साइड बराबर है. यदि दो साइड इसका बराबर है तो दो बेस एंगल भी बराबर होगा, वो बात की बात है. मगर वो दिया हुआ है द बेस एंगल्स आर इक्वल. तो दो साइड बराबर है और बेस एंगल बराबर दिया है, उसे आइसोलेस ट्रायंगल कहते हैं. और बोलता है कि बेस एंगल बराबर है और वर्टिकल एंगल जो दिया है 40 डिग्री दिया हुआ है, जो टॉप एंगल जो है 40 डिग्री दिया है. तो हम लोग मान लेते हैं कि बेस एंगल जो है x डिग्री. तो क्वेश्चन पूछा है कि बताइए कि बेस एंगल कितना है, और उसी में हम लोग माने कि बेस एंगल भी x डिग्री, हम लोग इसको मान लिए x डिग्री होता है. तो as we know that sum of all the angle of triangle equal to 180 डिग्री. सबका जोड़ जो होता है 180 डिग्री होता है, और जब हम जोड़ देते हैं तो 180 डिग्री हुआ. नाउ 40 डिग्री प्लस x डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, और we get 2x equal to, that is the 140 degree, or x will be 70 degree. So after solving we get the base angles equal to 70 degree. Any problem? कोई प्रॉब्लम नहीं है? ऑलराइट, ठीक है. एनी प्रॉब्लम? एनी स्टूडेंट? नो सर. किरण प्रिया, यस सर. नहीं है. कोई प्रॉब्लम है? ठीक, रश्मि प्रिया नो नहीं है सर. कोई प्रॉब्लम. ठीक है ना, ठीक है ना. क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसका दो बता दिए, इसका थर्ड अब हम बताते. थर्ड का सॉल्व द फ्लोइंग. इरफान सर थे ना आप लोग को क्लास में? इरफान सर थे. इरफान सर थे. यस सर. हाँ, तो इरफान सर का नाम यहाँ दिया हुआ है. इरफान से that he has 7 marble more than the 5 times the marble of Parmita. Has Irfan has 37 marble. How many marble does the Parmita have? Now marble जो दिया हुआ इरफान सर बोले कि मेरे पास जो है 7 marble more than the 5 times the marble of Parmita है. Irfan has 37 marble. Then how many marble does the Parmita has? Now let the हम सॉल्व करते हैं इसको. पहले परमिता को कितना मार्बल है वो हमको मालूम करना है, तो पहले उसको हम लोग मानेंगे x.
let the paramita, let the paramita, that is the paramita paramita, it is paramita, permit, it is permit. So let the permit has got x number of marble. Now according to इरफान, हमें इरफान के आधार पे देखेंगे तो इक्वेशन जब सॉल्व करेंगे तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि इरफान हैज सेड द 7 marble more than the 5 time of marble that Paramita has got. So 5 time of Paramita's marble, 5x plus 7 equal to 37, as he has got 37 marble. Or after transposing 5x equal to that we will get 37 minus 7. सही है, आपको समझ में आ रहा होगा? Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. We will solve it that x equal to 30, or after dividing 30 by 5 you will get that is 6, or x equal to 6. So in this way we have solved the problem. First of all, the statement of the Irfan was that the permit has got 5 10. I have got, that is Irfan has said that I have got 7 marble more than the 5 time of permit has got. तो परमिट के पास x नंबर ऑफ मार्बल माना और इरफान बोला कि उसके पास जो है 5 टाइम सर धुंधला दिख रहा है। तो उसके 5x plus 7 equal to 37, जो कि इरफान के पास 37 है. So in this way we have solved the problem, and after transposing the 7 to the right hand side, and we have solved 5x equal to 30 or x equal to 6. So in this way we have solved the problem. Question number 3 is. समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Now, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. All right, all right. ना हम लोग अब देखते हैं कि क्वेश्चन और क्या सॉल्व करें. दूसरा भी बना दें, बी सेकेंड वन. चलिए ठीक है, इसको सॉल्व भी कर देता हूं मैं. सेकेंड वन इसका लास्ट क्वेश्चन रहेगा, है ना. थर्ड का सेकेंड. लक्ष्मी फादर इज 49 ईयर ओल्ड. He is 4 years older than 3 times the Lakshmi is. What is the Lakshmi? Now let the Lakshmi age be x. Equation is that Lakshmi age is x. Let the Lakshmi, it is Lakshmi. Lakshmi age be x is. Now according to question, according to question जो दिया हुआ है, that is the 3x plus 4. According to question 3x plus 4 equal to 49. क्योंकि लक्ष्मी का पापा जो है वो 49 ईयर ओल्ड हैं और वो 4 साल ज्यादा ओल्डर है 3 टाइम द लक्ष्मी एज. सो 3 टाइम ऑफ लक्ष्मी 3x plus 4 equal to 49. This is the equation. After solving 3x equal to 49, after transposing 4 to the right hand side, so we will get this 3x equal to 45, or you will get x equal to 50. So 45 by 3
you will get 15. So Lakshmi age is 15 years. What is her age? Lakshmi age is 15 years. समझ में आया? समझ गए? Yes, sir. All right. So today class is over. Thank you. Bye, sir. Welcome, Bye. sir. Bye, sir. Bye.